اللہ الرحمن الرحیم الحمد للذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام تحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللہ والحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صلوات عزیزان محترم نوجوانان ملت بزرگان دین آپ کی خدمت میں مقام رسالت کے سلسلہ کی چوتھی مجلس پیش کر رہا ہوں اور فرقان معظم کی آیات کی روشنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کما حق کو آپ کو بتایا جائے کہ رسول کائنات کس شان اور کس عزت کے مالک ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے میرا حبیب یہ مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے ذاتی معاملات میں تجھے چیف جسٹس تسلیم نہ کر لے اور اگر تیرے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف ان کے دل میں خیال آ جائے تو یہ دائرہ اسلام سے فارغ ہے۔ یہ ٹیبل ادھر نہ کر دیں، دو بندے نے انہوں نے چہرے نہیں نظر ہونے بیٹا آئے یہاں ذرا اس کو ہٹا دیں گے جی صلوات پڑھیں ایک بار محمد علیہ۔ واہ ماشاءاللہ اب تو ہم بلا فصل ہو گئے ہیں نا، بلا فصل مولا کے ماننے والے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی حق دینے والوں نے نہ دیا، تھوڑا مجمع لیکن میرے ساتھ ساتھ رہیں گے نا تو پھر مزہ آئے گا۔ اب جو پیچھے ہیں پچھلے والے جو 3 مجالس اٹینڈ نہیں کر سکے انہیں نہیں پتا کہ حق دینے والے کون تھے مانگنے والا کون جی ایسے ہی ہے نا جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جنہوں نے نہیں دیا ان کا کردار کیا تھا؟ جو مانگنے گئی تھی بی بی وہ کس کردار کی مالک؟ تو بھائی جب نہیں دیا اب دیکھیں گورنمنٹ تھی ان کی، حکومت تھی ان کی، بادشاہت ان کی تھی، فوجیں ان کے پاس تھی، جسٹس ان کے پاس تھا۔ جب نہیں دیا تو انہوں نے کہا یار غلطی تو ہو گئی ہم سے کہ ہم نے رسول کائنات کی سند بھی پھاڑ دی، بی بی کو بھی دربار سے واپس بھیج دیا، اب کرے تو کیا کرے؟ سارے مولوی اپنے بلائے، انہوں نے کہا یہ کہڑی گل ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، دنیا نو کہہ دینے ہیں کہ نبی کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک بحیثیت بشر ہے ایک بحیثیت نبی ہے۔ جی یہ یہی سے رسم چلی نا کہ ہمارے جیسا ہے ہمارے جیسا ہے، یعنی کھینچ کے اپنے پاس لے آئے، لیکن میرے اللہ نے کہا میں بھی اللہ ہوں، تمہاری یہ کارستانیاں پوری نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ادا صلوات پڑھے ایک بار۔
सलवात भी पढ़ते चले जाएंगे। सरकार इतने हो रहा कभी मैं गरीब नहीं सुना, ये भी उन्होंने सुनते नहीं जिसे पेटे बने तो मैं तो परदेसी बंदा बाबा जी मैनू भी आखना सी मैं 5-10 नाल लिया सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये पेटों का मुझे पता चला, मैंने हमेशा एक मुहर्रम पढ़ा, ठीक है। पहले दिन मैंने तकरीर की ना तो वो देखते रहते हैं कि ये जो बंदे बता रहे हैं ना इनका कैलिबर क्या है। हाँ, उन सब से ना मैं उन्हें पसंद आ गया। जब मैं अपनी गाड़ी में वापस निकला ना तो 3-4 बंदे, वो जो सड़क है बाबे के दरबार की, 3-4 बंदे ना जी सामने आ गए। लामा साहब खड़े हो गए, मैंने गड्डी खलाई, बिस्मिल्लाह साढ़े ना चाह रखा। मैं कह यार टाइम नहीं है, अरे पियो तो सही थोड़े फायदे की गल। बह गया जी, चाह पीती उन्हें। उन्हें कहा जी मज़ा तो बड़ा है पर लामा साहब कल जो मज़ा आएगा ना वो अपना ही होएगा। मैं चंगा, मैं उसकी गल नहीं समझी। अगले दिन अभी मैं जाके मेंबर में बैठा हूँ, पहला जुमला कहा है 20 नारे इस तरफ से, 40 नारे इस तरफ से, 45 नारे, पूरा पंडाल भर गया। वो लामा कितों आ गया? हाँ जी, बड़ा चुक दिया उन्होंने। जब मैं निकला ना तो फिर वो खड़े, सरकार है स्वाद आया ना। मैं कही यार बड़ी मेहरबानी, थले उतरो गड्डी ए जनाब 40 बंदे जे साडे, दसो किवें मुकदे हो? तो भाई मैनू भी 2-4 मुक्कण वाले दे छड़ो, चलो मेरी मजलिस नारा ते मार दे जिस कौम का ये मराल हो भाई, वो हम क्या करें, पीछे रह जाए। यही सितम दे। तो आपकी खिदमत में मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरा हबीब जब तक ये तुझे जस्टिस तस्लीम नहीं करेंगे ये मुसलमान नहीं है। अब जब जस्टिस बन के मेरे रसूल ने फैसला दे दिया और उन्होंने इस फैसले को जटला दिया तो शर्मिंदगी हुई कि रसूल की बेटी को हमने वापस भेज दिया, क़यामत तक के लिए लोग हमसे पूछेंगे अब करें क्या। तो जो दरबारी और हवारी थे ना बेटे, उन्होंने कहा जी बात क्या है खलीफा साहब, अभी मसले का हल निकाले। उन्होंने जी बताएं क्या हाल है। उन्होंने कहा देखो रसूल भी तो हमारी तरह का है ना। हाय हाय, यहाँ से नजर चली जा मेरी आवाज जा रही है। रसूल भी तो हमारी तरह का है ना, हमारी तरह का बशर है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है। तो क्या हुआ, उसे कह देंगे ये बशरी तकाजा था कि बेटी की मोहब्बत में रसूल ने उसे सनद दे दी। जी 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 जी, ये बशरी तकाजा था। तकसीम कर दिया उन्होंने रसूल कायनात की जिंदगी को 2 हिस्सों में, एक बहसियत बशर, एक बहसियत रसूल। उन्होंने कहा वो काम
जो रसूल बेहसियत रसूल सर इंजाम देंगे वो हम मानेंगे, अमन्ना व सदकना। और वो काम जो रसूल बेहसियत बशर सर इंजाम देंगे वो मानना हम पे वाजिब नहीं है। ये रस्म यहाँ से चल रही। अब मैं भी मिसाल देता हूँ। चलो दोस्तों, चंद लम्हों के लिए, हमने पेड़ से किसी को भागने नहीं देना, चंद लम्हों के लिए ये फर्ज कर लेते हैं नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि रसूल कायनात की जिंदगी के दो हिस्से, एक बेहसियत बशर, एक बेहसियत रसूल। तस्लीम कर लेते हैं। सलात पढ़े एक बार मोहम्मद। जैसे मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरी जिंदगी के भी दो हिस्से, एक वो काम जो दफ्तर में बैठ के मैं करूँगा वो मेरा सरकारी होगा, उससे मानना जितने मेरे मतहत हैं उन पे वाजिब है जी। वो काम जो मैं घर में कर रहा हूँ, घर जाता हूँ, बीबी आंदी आटा मुक गई, दाल मुक गई, राशन मुक गया, वो काम क्या है? वो गैर सरकारी है। वो बेहसियत बशर में सर इंजाम दे रहा हूँ अपने घर में। वो जहाँ दफ्तर बैठा हूँ वो सरकारी काम है। वो मानना मेरे स्टूडेंट्स पे जो मेरे मतहत हैं उन पे वाजिब है। लेकिन वही स्टूडेंट अगर बाहर आ जाता है, मैं कहता हूँ भाई जा चक्की दे मेरा आटा पे आई, आने है ना बाबा जी, थोड़ा सा समझाने के लिए तमहीदी गुफ्तगू बेहतरीन रिजल्ट आपकी खिदमत में पेश करा। और पिछली तकरीरें एक तरफ और आज की तकरीर एक तरफ। उन्होंने कहा देखो, अब मैं उसी बच्चे से कहता हूँ बेटा जाओ ये आटा ले जाओ मेरे घर, वो तो बच्चा है, ये साडा मास्टर पे हमने मान लिया। जो ही उसने आटा उठाया वो अब्बे देख ले, प्रोफेसर मेरे मुंडे को घर दे काम करान दे, हाय हाय हाय, जी जी फौरन शिकायत कर देगा, मुझे सजा हो जाएगी। तो भाई तस्लीम करते हैं कि मेरे रसूल की जिंदगी के दो हिस्से, एक बहसियत रसूल, एक बहसियत बशर। वो जो बीवियों को 11-12 बंदियां दी उनको आटा देना, उनको रिज़्क देना, ये फर्ज है रसूल का। क्योंकि वो काम जो रसूल कर रहे हैं बीवियों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, वो मानना हम पे फर्ज नहीं है। वो घर में कर रहे हैं, भाई तस्लीम करते हैं। तो भाई वो काम जो मेरा रसूल बेहसियत रसूल से अंजाम देगा वो अपने घर में नहीं देगा, अल्लाह के घर में देगा। मैं बिल्कुल अपनी तकरीर के करीब आ गया। अपने घर में देगा, अल्लाह के घर में देगा। अब अल्लाह का घर कौन सा है? मस्जिद, ठीक है भाई। मस्जिद में मेरा रसूल जो काम करेगा वो जाती नहीं होगा, वो बहसियत रसूल होगा। मस्जिद है सरकारी जगह। अब दूसरी सरकारी जगह मेंबर जहाँ रसूल शरीयत बताते, जहाँ रसूल दीन देते। तीसरी सरकारी जगह महराब, जहाँ पे रसूल बैठे हुए मस्जिद में महराब में साहबी मसले पूछ रहे। तो भाई आओ सरकारी जगह पे चले। मेरा रसूल मस्जिद में तशरीफ फरमा है कि सैयदा फातिमा ज़हरा बाहर से तशरीफ लाती है। जाको जाको दोस्तों जुमला देना चाहता हूँ, जैसे मेरी आवाज़ आ रही है। मस्जिद सरकारी जगह है, बीबी तशरीफ लाती है, रसूल बीबी के इस्तकबाल के लिए उठते हैं। रसूल से पूछे या रसूलल्लाह सरकारी जगह है, ये बेटी है, सरकारी जगह में बेटी का इस्तकबाल कैसा? तो रसूल कायनात ने मस्जिद में बेटी का इस्तकबाल करके कायनात की आखिरी सदी तक ये वाज़े कर दिया कि मैं इसका इस्तकबाल बेहसियत बाप नहीं कर रहा, बेहसियत रसूल कर रहा हूं। बेटी का इस्तकबाल बेहसियत बशर नहीं कर रहा, घर में बैठ के नहीं कर रहा, अल्लाह के घर में कर रहा हूँ, सरकारी जगह पे कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ।
बीबी तशरीफ लाई, रसूल ने इस्तकबाल किया। दूसरी सरकारी जगह है मिंबर। अब मैं राज करवा रहा हूँ आपको, जहाँ जहाँ आप बैठे हुए। दूसरी सरकारी जगह मिंबर सजे। मिंबर पे क्या होता है? खुतबा दिया जाता है, शरीयत बताई जाती है, दीन बताया जाता है। तो कायनात का रसूल है मिंबर पे, सहाबा का जन्म गफीर है, मिंबर पे शरीयत बता रहे थे कि बाहर से एक छोटा सा बच्चा, मेरी आवाज आ रही है, बाहर से एक छोटा सा बच्चा हथकेलियां फिर पहले तशरीफ लाया। बुखारी के जुमले हैं, तिरमिज़ी में लिखा हुआ है, सहाह सत्ता की चारों किताबें इस बात की शाहिद है कि जब ये बच्चा मस्जिद में दाखिल होने लगा, बच्चे को ठोकर लगी, बच्चा गिर गया, रसूल ने शरीयत को रोक दिया, बच्चे को उठा लिया। चीची मरद को सुना में के जाजा मेरी आवाज आ रही है। रसूल कायनात ने शरीयत को रोक दिया, बच्चे को उठा लिया। या रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं? आप दुनिया को दीन बता रहे हैं, आप दुनिया को शरीयत बता रहे हैं, आप दुनिया को नमाज बता रहे हैं, एक बच्चे के लिए शरीयत को क्यों रोक दिया? तो रसूल कायनात ने कहा कि मैं शरीयत बता रहा हूँ, ये शरीयत नहीं है, ये असूल दीन है। सरकारी जगह है दोस्तों, सरकारी जगह है ना। बीबी आई इस्तकबाल के लिए, रसूल उठे, मिंबर पे बैठे, बच्चा आया, शरीयत को रोक दिया, हुसैन को उठा लिया। अब वही रसूल सरकारी जगह पे बैठा हुआ मेहराब में। अब आपके ज़ौक़े समात का इम्तिहान है। वही रसूल मेहराब में बैठा हुआ है, ईद का दिन है। बच्चों ने पहले माँ से रिक्वेस्ट कर ली कि अम्मा आज ईद का दिन है, हर बच्चे ने नए कपड़े पहने हुए हैं, तो हमें भी कपड़े चाहिए। आखिर इमामों की माँ थी। जो ही बच्चों ने कहा तो फौरन कह दिया कि बेटा तुम्हारा दर्जी कपड़े लेके आ रहा है। ना दोस्तों, तुम्हारा दर्जी कपड़े लेके आ रहा है। अल्लाह ने अपनी कनीज के जुमले को सुना। जबरील से कहा, जबरील सारी बातें छोड़ दे, मेरी कनीज के मुंह से निकले हुए जुमले पूरे होने चाहिए। जबरील जन्नत से कपड़े लेके जमीन पे आया। शहजादों ने जन्नत का लिबास पहना। अब शहजादों की टोरी और थी, लोगों ने जमीन पर पहना हुआ था, शहजादों ने जन्नत का पहना हुआ था। अब उसी जन्नती लिबास के साथ दोनों शहजादे आए मस्जिद में। नाना की एक तरफ हसन बैठ गया, एक की तरफ हुसैन बैठ गया, दाएं बाएं दोनों शहजादे बैठ गए। नाना ने देखा कि आज तो शहजादों की टोरी और है, आज तो दुनिया की ताकी नहीं पड़ रही। कहा नाना जान, जी बेटा। नाना जान, लिबास हमने जन्नत का पहना हुआ है, आज हमें सवारी भी जन्नत की चाहिए। जी वाला आपको सलामत रखे, आज हमें सवारी भी जन्नत की चाहिए। कहा बेटा समझा नहीं। कहा नाना जान, आज ईद है, हमें नाका चाहिए, हमने झूले लेने। भाई अगर सिर्फ नाका होती तो साबियों के पास तो बड़ी तेज रफ्तार नाके थी, पहाड़ों पे चढ़ जाती थी। किसी 6 फुट वाले से कहते भाई ले जाओ बच्चे हैं, वो जागो जुमले देना चाहता है, जा मेरी आवाज है, ले जाओ बच्चे हैं, इन्हें अपनी नाका पे सैर करा दो। अली तुम ले जाओ, तुम्हारे बेटे हैं। दोस्तों, ना किसी सहाबी से कहा, ना अली मौला से कहा, बस वही मैदान में बैठे हुए मेरे रसूल ने गोलियों को ले आपकी खिदमत में अर्ज करा। मेरे रसूल ने कोनियों को मारा, मेरे रसूल ने पाओ को मारा, वही बच्चों के लिए, वही मैदान में बैठे हुए मेरा रसूल बच्चों के लिए नाका बन गया। सवाल करें, या रसूलुल्लाह बच्चे हैं, या रसूलुल्लाह बच्चे जुमला देना चाहते हैं, मेरी बात आ रही है, या रसूलुल्लाह बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चों के लिए मैदान में नाका क्यों बन गए? तो रसूल
مولا حسین تیری عظمت ہے بے نثار جی، مولا صاحب آپ جیے، حسین والے جیے. ہمیں ناکا چاہیے بھائی، وہی رسول نے کلیوں کو بھائی خاتم النبیین ہے، نبیوں کا سردار ہے، اکیلا نہیں بیٹھا ہوا، صحابی بھی بیٹھے ہوئے جی. سب نے دیکھا ہوگا کہ رسول کس کی شبیہ بن رہے ہیں؟ ناکا کی شبیہ بن رہے ہیں. خود تو ناکا نہیں نہ بنے، صحابیوں نے نہیں دیکھا کہ آج رسول شبیہ بن رہے ہیں. آج کہتے ہیں شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہاں تو 1.25 لاکھ صحابی بیٹھا ہوا تھا، کس کس کا نکاح ٹوٹا ہے؟ جی مولا آپ کو سلامت ہے. کس کس کا نکاح ٹوٹا ہے؟ میرا رسول شبیہ بنا، مسجد میں بنا، صحابیوں کے سامنے بنا، شبیہ بن کے حسنین کی میرے رسول نے واضح کر دیا کہ ان کے لیے شبیہ بننا بھی جائز ہے، شبیہ بنانا بھی جائز ہے. بھائی حسین تو ہے ہی ایسا ہے. یہ تو بچپن تھا جب میرا حسین آیا ہے، تو اسی وقت حسین نے معجزہ دکھا دیا تھا کہ تم اعتراض کرتے ہو کہ کیسے مرادیں ملیں گی. اور بھائی تم تو گنہگار بندے ہو، فطرت سے بندہ نہیں ہے. جی فضائل کی تقریر کا آخری جملہ جہاں میری آواز آ رہی ہے، فطرت سے بندہ نہیں ہے، مطلوب الہی ہے. بھائی مطلوب کیسے ہوا؟ فرشتہ ہے، معصوم ہے، معصوم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ترک اولا ہوتا ہے. یہ بچے بیٹھے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بچوں تھوڑا سا آپ کو سمجھا کے جملہ کہتا چلا جاؤ تاکہ میرے بچوں کو سمجھ جائے. نبی معصوم ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا، ترک اولا. کل اس میں بھی بات ہوگی، لیکن آج فطرت کی ہو رہی. فطرت کی فطرت میں اللہ نے گناہ رکھا ہی نہیں. فرشتہ معصوم ہے، اس کی فطرت میں گناہ نہیں. اب اس سے کیا ہو گیا؟ ہوا یہ کہ ایک دن ضد کر بیٹھا کہ یا اللہ مجھے آج اپنی کنیز فاطمہ زہرا کی جگیر تو بتا دے. ہائے ہائے ہائے، ضد کر بیٹھا. اللہ نے کہا کی کر لیا؟ مرچا. میں نے کہا نہیں میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا پرواز شروع کر. تاریخوں میں لکھا ہے کہ فطرت پرواز کرتا چلا گیا. اللہ نے کہا آگے بڑھتا چلا جا، بڑھتا چلا جا، بڑھتا چلا جا. آخر ایک جگہ گر گیا. یا اللہ اور فاطمہ کی کتنی جگیر رہ گئی؟ اللہ نے کہا ابھی تو فضا کی مکمل نہیں ہوئی. ہائے ہائے ہائے، ابھی تو فضا کی مکمل نہیں ہوئی، تو کس جگیر کی بات کر؟ اس نے کہا دیکھو، اللہ نے کہا میں تجھے منع کیا تھا، اب جا، تیری سزا یہی ہے کہ جہاں گرا ہوا ہے گرا رہے. بڑی توبہ کی. اللہ نے کہا نہیں، جو ان کے ساتھ ضد کرتا ہے نا، میں اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے، جو ان کے ساتھ ضد کرتا ہے میں ان کی توبہ قبول نہیں کرتا. اگر یہ دیتے ہیں معافی تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. عزیزانو، جب یہ سلسلہ لیا 1000 سال وہاں پڑا رہا ایک قدر میں، جب حسین اس دنیا میں تشریف لائے، جبریل فرشتوں کی میت میں رسول کائنات کو مبارک دینے کے لیے زمین پہ آنے لگا. اس رستے سے گزرا جہاں پہ فطرت پڑا ہوا تھا. جبریل کو دیکھا، رستے میں کھڑا ہو گیا. کہا جبریل کدھر جا رہا ہے؟ کہا تجھے آج پتہ نہیں ہے کہ کائنات میں حسین تشریف لایا؟ اچھا مجھے بھی لے جاؤ. آئے عجیب التجا ہے، مجھے بھی لے جاؤ، شاید مجھ سے یہ ترک اولا کی منزل دور ہو جائے. فرشتوں نے اٹھایا، آستانہ سیدہ بھی آئے، چوکھٹ پہ سجدہ ریزی کی. رسول کائنات نے کہا جبریل کیسے آئے ہو؟ کہا مولا اللہ نے 20,000 فرشتوں کے ساتھ مجھے زمین پہ بھیجا ہے کہ حسین آیا ہے، جا کے رسول کو مبارک دے دے. کہا مبارک قبول فرما لی.
जिस हुसैन के झूलने में इतनी बरकत है, उसके अली असगर के झूलने में बरकत नहीं है। अजीब शान है ना भाई। ये सारे हुसैन हैं, सारे अली। इनका तो वकील भी हुसैन है। मौला चले ना जब, तो शहजादी ने अपने 2 बेटे दे दिए। कहा देखो वकील, तुम जा तो रहे हो, लेकिन जब जरूरत पड़े ना तो मेरी तरफ से ये दोनों लाल कुर्बान कर देना। मौला है क्या था आपके 40,000 बंदों ने मौला के हाथों पे बैयत की। ये जो आज 4 मुहर्रम है, इस 4 मुहर्रम में काजी शरी ने फतवा दे दिया कि हुसैन वाजिबुल कत्ल है। उसके इस फतवे की रोशनी में 18,000 फतवा फरोश मौलवियों ने फतवा दिया कि हुसैन वाजिबुल कत्ल है। यानी बुनियाद रख दी काजी शरी ने नोट दे के, पैसा दे। इससे पहले जनाब मुस्लिम है, वही लोग जिन्होंने 40,000 बंदे शहजादे के हाथ में बैयत की थी। जब इब्न ज़ियाद उस रूप में आया कि लोगों ने समझा कि हुसैन तशरीफ लाए, सीधा दारुल मारा गया। जब वहाँ जम्मे गफूर था लोगों का कि हमने फर्जंद रसूल की ज़ियारत करनी, जब उस कमीने ने अपना निकाब उल्टा तो लोग हैरान रह गए कि ये फर्जंद रसूल तो नहीं है, ये तो इब्न ज़ियाद है। उसने पहला खुतबा जो दिया, उसने कहा जिसने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी उसका घर जला दिया जाएगा, जिसने हुसैन की हमायत की उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसकी खवातीन को लौंडिया बना दिया जाएगा। कमाल कर दिया उसने हुर्मत कूफा को। लोग इतने डर गए कि जब सुबह के वक्त मेरे मौला ने नमाज पढ़ाई तो पीछे 40,000 बंदा था। जब इशा के वक्त आए, मगरिबैन के वक्त आए तो पीछे 3 बंदे थे। अकेला रह गया मुस्लिम। मनादी हो रही थी कि मारे मारे मुस्लिम को, जो भी मुस्लिम को मारेगा उसे दौलत से लाभ दिया जाएगा। अज़ादार 10,000 का लश्कर गलियों में कुत्तों की तरह भाग रहा था। एक मर्तबा मुस्लिम से आमना सामना हुआ। अली का फर्जंद था, दुश्मन भाग गए। एक जाके भाग के कहते इब्न ज़ियाद को ताजा दम दस्ता दे। उसने कहा 10,000 बंदे का दस्ता है। उसने कहा मुकाबला किसी आम बंदे से नहीं है, मुस्लिम पे नकील से है। अज़ादार ताजा दम दस्ता। तारीख कहती है कि 4,000 ज़ख्मी जनाब मुस्लिम को लगी। पेशानी भी जख्मी थी, होंठ भी जख्मी थे, ज़बान भी जख्मी थे। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम को ज़रबे नहीं लगी हुई थी। गिरते गिरते मुस्लिम एक दरवाजे पे बैठ गए। दरवाजे पे बैठ गए। दरवाजे पे बैठना था, अंदर से मालिकन की आवाज आई, कौन है? इसलिए इस हालत में मेरे दरवाजे पे कहा मैं परदेसी हूँ। मुस्लिम की आवाज आई। बीबी कहती है अगर परदेसी है तो किसी सराय में चला जा। मुस्लिम कहते हैं मुझे सराय में कोई नहीं रहने देता। कहा मस्जिद में चला जा। कहा मुझे मस्जिद में भी कोई नहीं रहने देता। जब दोनों जगह भूल गए ना तो बीबी हाथ जोड़ के कहती है जमाना दुश्मन है, जहाँ जाना है चला जा, मेरे दरवाजे को छोड़ दे। अज़ादार तारीख के जुमले हैं। जब बीबी ने यह कहा कि मेरे दरवाजे को छोड़ दे तो एक मर्तबा पूरी ताकत को मुस्लिम ने जमा किया। जमा करके उठते हैं, बेसाख्ता निकलता है, या अली अब देखने। अली का सुनना था कि तुम्हारे दरवाजे को खोल दिया। कहती है परदेसी अंदर आ जा। मौला अंदर गई, हाथ जोड़ के कहती है जल्दी बता मुझसे गलती ना हो जाए। तू
है कौन? क्या तू अली को जानता है? मुस्लिम कहते हैं जितना मैं जानता हूँ ना, कायनात की कोई शख्सियत नहीं जानती। बीबी ने अपनी चादर उतारी, नीचे बिछा दी। कहा अच्छा अली को जानते हैं? कहा जानता हूं। दूसरा जुमला बीबी ने कहा कि अली की शहजादियों को भी जानते हैं? मुस्लिम कहते हैं हाँ जानता हूँ। बीबी कहती अच्छा किसी एक शहजादी का नाम बता दे। जब नाम का चुनना था ना ज्यादा रहो, पूरा मुस्लिम कांप गया। कांपते हुए मुस्लिम को देख के कहती है कांप क्यों रहा है? कहा जमाना दुश्मन है, मैं अली की बेटी का नाम मेरे दरबार में कहा अच्छा ये बात है तो खुदारा मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बताओ तो सही तो है कौन? कहाँ का रहने वाला है? कहा मदीना रसूल का रहने वाला। कहा किस मोहल्ले का? मुस्लिम रोक के कहते मोहल्ला बनी हाशिम का। बनी हाशिम का सुनना था ज्यादा और तबा से बैठा नहीं गया। रोक के कहती है तो उस घराने में, तो उस मोहल्ले में रहता है जहाँ हर बंदे की दवाएं पाक बीबी के सदका में कबूल होती है। जाके बीबी के दरबार में जाकर मुस्लिम लोग के कहते हैं क्या करूं मैं उसी बीबी का तो बेटा? कहा तू मुस्लिम तो नहीं है? कहा तला में मुस्लिम हूँ, तला पे में गिर गई। रोके का मौला मुझे माफ कर देना। एक मर्तबा एक बिल्का पेश का दूध की आवाज आई, तला मैं तेरी जन्नत की ज़ामिन। रोते भी यही मंजिल बुलंद भी करते। मौला मेहमान बाहर से भाइयों कुत्तों की तरह भाग रहे थे अज़ादा लोग। जमाना दुश्मन था, दरवाजों पे हटे हो रही थी। मुस्लिम कहते हैं मेरी वजह से आपके कोई अताब ना आ जाए, मैं निकलता हूँ। बीबी ने बड़ा कहा लेकिन अज़ादार मुस्लिम ने नहीं सुनी। मुस्लिम बाहर निकले, सिपाही की की तरह जनाब मुस्लिम पे चढ़ते। किसी ने तीर, किसी ने नेज़ा, किसी ने पत्थर। जिसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा था वो मेरे मुस्लिम पे रेत फेंक रहा था। अज़ादार तारीख कहते हैं गले में मुस्लिम को गिरा दिया। पत्थरों से गले को भर दिया। जब समझ गए कि मुस्लिम नहीं रहे, रस्सियां बांध के शहजादे को गले से निकाला। धकेलते हुए दारुल मारा की तरफ बढ़े। उन्होंने हुसैन मैदान करबला में आवाज बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोते हुए पास करीब आए, कहा मौला क्या हुआ? कहा पास मेरा मुस्लिम। कहा मौला मुझे दिखाइए तो सही मुस्लिम किस हालत में। अज़ादारा जुमला सुनाई। मौला ने कहा अब्बास मेरी अपनी उंगलियों के दरमियान देख। फुगाशा ने जब अब्बास ने देखा तो क्या देखते हैं? दारुल मौला की छत है, सिपाही के हाथ में तलवार है, अकेला मुस्लिम है। अब्बास की आवाज आई मौला मुझे कुछ से पूछो। कहा अब्बास वक्त नहीं है। जनाब ज़ैनब ने सुना कि दोनों भाई अकेले रो रहे, रोती हुई पास आई। कहा मुझे नहीं बताओगे क्या हुआ? कहा ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। कहा भैया बताओ तो सही। कहा ज़ैनब देखना है तो मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। अब जब बीबी ने देखा तो तलवार चल रही